टू टेल यू फ्रैंकली मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो मुझे 2015 से फॉलो कर रहे हैं. ओके सो दे आर ऑलमोस्ट लाइक माई Family फैमिली only. एंड दे टेल मी डॉक्टर अभी आप कहाँ हो, कौन से क्लिनिक में हो, कौन से मिलने आ रहे क्लिनिक में हो. विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल यू हैव सीन सो फार? मतलब बंदे ने पूरे दांत खराब करके ही आए मेरे पास टाइप में. हाँ, ऐसे तो काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनकी फॉर एग्जांपल दे आर हैविंग टोबैको, दे आर हैविंग यू नो फॉर लॉन्ग टाइम, तो उनका पूरा मतलब बैंड बजा हुआ होता है. तो या वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज फुल माउथ रिहैबिलिटेशन. ओके. हाँ, तो उसमें आप Hi everyone, I'm Aisha Sheikh here. Welcome to my podcast Chai Shai with Aisha, powered by Procast Studio Dubai in association with AMG Digitech Solutions, your one-stop solution for all your printing, designing and digital marketing needs. And special shout out to our travel partner Takeoff Tours. Well, today with me I have a very beautiful dentist on board. And you have a special title, restorative dentist or aesthetic dentist. What does that mean? Because मैंने last जो interview किया था, I heard of pediatric dentist. Now this is different. So what is this aesthetic and restorative dentist? So aesthetic means something which is pleasing, which will give you uplifting smile, or something around your lips, that structure. Okay. So we deal with the aesthetics altogether, and restorative is something which is, for example, if you have a deranged smile, or we call it malocclusion, or we call it smile which is not really up to the mark. So we restore the smile. So we consider Okay. something as 100% correct, and from that deviation, whatever you have, we try to get it as close as possible to the 100%. So that is what we are restorative. Okay. Yes. And how is it different from prosthodontist then? So prosthodontist is, they usually deal with the prosthesis. So Okay. prosthesis is something like crowns, bridges, veneers, or even full mouth rehabilitation. Yeah. So it is not very different, but restorative includes, it's all inclusive branch Oh. kind of a dentistry. Okay. So it also includes the pediatric dentistry. It also includes whichever needs restoration and aesthetic upliftment. So 360 डिग्री पूरा कवर कर देते, हाँ छोड़ा जी, नहीं हाँ किसी जी. के लिए भी आपने. नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. Okay, ठीक है. But why dentistry? What made you choose this profession? Well, मेरे जो डैड हैं, he is also a doctor. तो जब हम लोग बचपन से देखते हैं कि उनको जितना रिस्पेक्ट मिलता है, हम लोग जहाँ जाते हैं उनको पहले सब ही इज़ काइंड ऑफ गिवन फर्स्ट ऑर्डर. तो वो देख के हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि या वी शुड ऑल्सो गेट द सेम ऑनर, सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम द कम्युनिटी. तो इन यू नो अननोइंगली ये चीज़ें हो जाती हैं, एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर. And we are happy to have. Dubai is so happy to have you in this field. टेस्टिमोनियल जो पढ़े हमने आपके, हाँ तो जी. डेफिनेटली उससे बनता है कि यू आर वन ऑफ अ जेम, एंड आई कांट वेट कि मैं भी आके फिक्स करा लूँ अपना. बता दो इनको. Okay. मोस्ट वेलकम एनी टाइम. हाँ, अभी विजिट तो करनी है अपने को. एक तो आई हर्ड दैट यू ऑल्सो ओन योर ओन क्लिनिक इन मुंबई, राइट? Yes, yes, yes. एंड यू हैड अ यंग चाइल्ड. हाउ ओल्ड इज दैट चाइल्ड राइट नाउ? Now he is 19. संतूर मॉमी. And that time how old he was having the clinic? That time he was 1.5 year old. 1.5 year old. Yeah. Then it was your own clinic. Yes. And how did you manage then with a It toddler? was very tough, very tough. Right from finding the place for the clinic, I used to actually take him in a pram and go everywhere to search places wherever the agents has told us. एंड उसके बाद फिर टैक्सी में जाना आना, वो सब करने के बाद एक जगह जो फाइनलाइज हुई, उसके बाद I mean it was very difficult to do everything on our own because my husband was busy all the time. He is into marketing and sales even now. So they have a very hectic job schedule. और छोटा बच्चा लेके सब करना was very very difficult. But ultimately, yeah, by God's grace, everything fell into place and I started my practice. I worked there for 6 years. And even when now I go back and some of my patients, they meet me somewhere on the road, they say, when are you going to come back?
So which is like a very satisfying kind of a question, you know. I mean, they really remember me, they miss me. Yeah, definitely. Okay. So now when you came back to Dubai, okay, do you still have your own clinic here? No, I'm a kind of business partner with two places, two institutions, great ones. One is Health Hub by Alphatem, and another one is Unicare Medical Center. That is in Mankhul. Okay. Okay. So when you came to Dubai here, I heard that you were alone. You came alone. Yes, I came alone. How did you manage to gel in with a new place, make your place here in your career as well in this field? So ये सारा कैसा हुआ फिर? ऐसे हुआ कि जब मैं इंडिया में थी, मुंबई में थी, मेरे एक पुराने मेंटोर थे जिनको यहाँ पे क्लिनिक सेटअप करना था. Okay. सो ही सेड व्हाई डोंट यू ट्राई कमिंग टू दुबई. तो उन्होंने वो कीड़ा छोड़ दिया मेरे मन में. एंड देन आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग मोर एंड मोर अबाउट इट कि भाई कैसे आना है, कौन सी एग्ज़ाम देनी है. ये सब करने के बाद देन आई डिसाइडेड टू स्काउट ऑन माई ओन. Also, one of my senior colleague here, he helped me out for document clearing and everything. क्योंकि वो उस टाइम पे DHA was not so this thing. जैसे अभी उनकी जो updated website है इतनी थी नहीं वहाँ तब. और जो भी email हम लोग उनको करो, रिप्लाई जल्दी नहीं आता था या फिर आता नहीं था. तो देयर वाज सम माइनर ग्लिच जिसकी वजह से मेरा डॉक्यूमेंटेशन 1 साल के लिए चलता रहा. 1 साल के लिए चलता रहा. 2013 आई स्टार्टेड. 2014 जुलाई वगैरह मई जून में वो ख़त्म हो गया फाइनली. देन आई लैंडेड हियर. यहाँ मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, वो रहते हैं. तो फॉर्चुनेटली हिज प्लेस वॉज क्लोजर टू वेयर आई गॉट डाउन. एंड देन आई स्टार्टेड स्काउटिंग अराउंड एज यूजुअल जैसे करते हैं. फॉर्चुनेटली मुझे यू नो वाई आयशा आई रियली फील ग्रेटफुल टू गॉड इज़ एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ कोई ना कोई मुझे ऐसे भगवान ने दिया है जो मदद करने आएगा. और जो मेरे मतलब ही और शी दैट पर्सन इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू मी. ओके. तो ऐसे हेल्प मुझे हमेशा हर एक स्टेप पे मिली है. कैसे ढूंढते हो ऐसे लोगों को आप? By His grace, nothing else. Okay, because that was my next question. Ki you had, when I was hearing your story, this is what you told me frequently. Ki I'm always surrounded by positive people, or there are people at all walks of life. I have someone or the other helping me out करके. 100%. That's what I'm saying. So that's why I believe कि मैं blessed हूँ. You know, इस तरीके से अगर मेरे पास प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो मुझे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं. हाँ जी. आई थिंक मोर ऑफ दैट ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा जिसकी वजह से आपको लग रहा है. एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है अगर ऐसे माइंडसेट लेके चलेंगे तो. हाँ जरूर. व्हाई नॉट. लुक एट यू. Isn't it? See? I say that मेरे को हमेशा लोग खड़े हैं मेरे लिए करके. दिस इज माई डायलॉग एज वेल. ऑलवेज. तो ये माइंडसेट ही है ना अपना फिर तो. हमेशा ना. हाँ. और आप अच्छा करो किसी का, आपको अच्छा ही मिलेगा. ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी सम विलन्स हियर एंड देयर. और वो होने भी चाहिए. होने चाहिए. क्योंकि फिर उससे थोड़ा मजा आता है ना. स्टेप अप करते हैं हम अपना एक लेवल ऊपर. नहीं तो फिर वो अच्छी गुड़ी बॉलीवुड फिल्म कोई देखेगा नहीं. आई नो. ऊपर से मेरा एक ये है कि जब मेरा सोशल मीडिया भी बना था ना, वो आधा मेरे हेटर्स की वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था बिगनिंग में. वाओ. क्योंकि मैं आई लेफ्ट माई प्रोफेशन एंड आई गॉट इनटू समथिंग डिफरेंट व्हिच इट टेक्स गट्स वहाँ पे जाके करने के लिए. एंड वो होता है कि सक्सेसफुल होगा नहीं करके मोस्टली लगता है लोगों को. तो मैंने रिस्क लेके किया. वो समहाउ इट वाज शेपिंग वेल. तो ये क्या हुआ, इतना टॉक ऑफ द टाउन हो गया था उस वक्त कोविड के वक्त कि वो लोग आके मेरा इंस्टाग्राम का रीच इतना वो लोगों नहीं बढ़ाया क्योंकि चेक कर रहे थे बार बार आके. हाँ देखो. बाद में इंस्टाग्राम वाज लाइक कौन है ये इसका. तो वैसे मेरा रीच बढ़ा. हाँ. सो दे हैव एक्चुअली हेल्प्ड एंड आई थैंक देम ऑल. थैंक यू गाइस. अब तुम्हारी वजह से मैं आऊँ. प्लीज कीप द सेम एटीट्यूड. अभी पता नहीं कहाँ है वो लोग, पर लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प किया तो मैं आगे चली गई. अभी वो लोग पीछे हैं वहाँ पे. बट आई एम होपिंग कि आई मीट देम समडे बिकॉज यू नो दीज वर द पीपल हु हेल्प मी व्हेन आई वाज टीचिंग. तो वो लोग ये सारे लोग हेल्प किए. ऐसे नहीं होता ना कि आप अकेले यहाँ पे हो. तो दे वर देयर फॉर मी. बट लेटर वी पार्टेड वेज एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड. हाँ थोड़ा सा अगर आप उनके थोड़े से ऊपर लेवल पे चले जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता. हाँ ये मैंने नोटिस करा है. हाँ आपको तो उसी हर्ड में रहोगे तो फिर भी they'll feel like a community कि हम लोग साथ में हैं, कहीं नहीं जाएंगे. हाँ आपके साथ ऐसा होता है, कभी हुआ है? हाँ कई बार होता है.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं, जोर का झटका धीरे से देना चाहिए. हाँ. So you don't reveal it yet, जो भी आपका है, because you came with nothing. Although आप इंडिया में सेटल थे, यहाँ के तो आपने बहुत स्ट्रगल किया है. बहुत ज़्यादा. हाँ. और एक साल तक आप, when you didn't have your job, then how did you manage? No, in the sense I had a job in hand when I landed here. Okay. But usually आप पहले आते हो तो you need some good what do we say, terms and conditions to come here. For example, maybe आप पहले आते हो तो आपको एयर फेयर चाहिए होता है, क्योंकि आप इतना सारा खर्चा करके आते हो. लॉजिस्टिक्स ज़्यादा रहते हैं. हाँ. तो यू नीड समथिंग रिटर्न, थोड़ा तो होना चाहिए. तो वैसी वाली कंडीशंस नहीं थी. और अगर मेरे साथ फैमिली आ रही है तो आई नीड टू हैव समथिंग सब्सटेंशियल टू सर्वाइव. सो इसीलिए मैंने अलग स्काउटिंग चालू की. ओके. एंड आई हैड अ जॉब लेटर ऑन. फॉर्चुनेटली आई गॉट समथिंग. अगेन माई कज़न वॉज हियर. ओके. तो जो कहते हैं ममेरा भाई, हाँ, वो था मेरा यहाँ पे. कौन सा भाई? मेरा भाई मतलब मामा के साइड से, मौसी के साइड से. मुमेरा भाई था उसका नाम. ममेरा. ममेरा नाम नहीं, मेरे को मालूम पड़ा, वो वर्ड अच्छा लगा मुझे. ओके. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. आई डोंट नो दिस इज अ वर्ड, राइट? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं नहीं है, तो हम इसी को फिक्स करेंगे. ममेरा बहुत अच्छा साउंड कर रहा था. सो कजन, चलो एक कॉमन वर्ड, कजन था. तो यू वोंट बिलीव, वो रहता था जिनके साथ, तो उनके साथ उन्होंने थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम मेरे बारे में बात की. तो उन्होंने कहा, हाँ, आई नो समबडी इन आई केयर क्लिनिक्स, आप वहाँ पे जाके मिलो. एंड दैट टाइम आई केयर क्लिनिक्स वॉज वेरी वेरी फेमस. तो मुझे डायरेक्टली CEO के पास रीच मिली. And I had a good dialogue with him, and I got selected. Wow. Yeah. Talent भाई. Talent नहीं यार, वही तो मतलब टैलेंट और लक खुदा दोनों उसमें. Yes. ये दोनों काम आ गया. Perfect. So then, और फिर बाद में it is like what we are seeing right now. Yes. Okay. Now another thing is like many people are scared to go to a dentist. They are scared of dentist visits. I know. Okay. So there are a lot of myths that goes around this thing. Do your patients feel the same? अच्छा, आपको एक बताऊं कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो सबके सताए हुए आते हैं. I'm sorry. What I mean is कि जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ना डेंटिस्ट से, वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरा नेचर और प्रॉब्ली मेरा वे ऑफ ट्रीटिंग ऐसा है, इस तरीके से है कि आपको आई वुडंट से पेनलेस, वो मिथ रहेगा, लेकिन ज़रूर वो लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं. You pacify them so much that मतलब वो कभी मेरी तो एक पेशेंट थी जो बेचारी, she used to travel from Discovery Gardens to Gises and she used to say, डॉक्टर आप रूट कनाल करो, मैं तब तक सो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ. Oh my God. So she used to sleep in the chair. तो इतना ज़्यादा वो मुंह खुला कैसे? हाँ, वी हैव सर्टेन थिंग्स टू डू. तो वो सो जाती थी. तो मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं, तो कान में ये लगा के सो जाएंगे, मैं मेरा काम करती रहूंगी. होने के बाद दे गेट अप एंड गो. कभी स्नोरिंग वीरिंग हो गई? हाँ, क्यों नहीं. तो मैं और मेरी असिस्टेंट यूजुअली एक दूसरे के पास देखते सो गए. ये दैट मस्ट भी, मतलब इमेजिन कर रही हूँ मैं कि कितना पीसफुल होगा कि वो सो गए. हाँ, आई मीन परफेक्टली, बिकॉज प्रॉब्ली आई एड्रेस देयर फियर्स right when they come to me. And I don't really tell them to jump into the chair. Okay. है ना, थोड़ा जब आप मुझसे कुछ काम करा रहे हो which is very very delicate, sensitive, तो हाँ, rapport is very very important. True. And that you maintain well. Yes. Okay, so your patients definitely don't feel that, they don't have that scary wala feeling when they come to you then. Yeah. If you read my reviews, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे ही हैं कि जिनको डर लगता था, फोबिया है, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं for sure. Amazing, man. Okay, you're the second dentist I'm meeting. There are few more dentists in my circle. लेकिन इंटरव्यू तो आप second dentist हो, and most loved dentist I can say. Oh, thank you so much. Okay. Now, any memorable stories you have of your patients? Like कभी आए हैं and you don't want to forget that scene only. Hi, क्या scene था? मतलब वो आए आपके पास and कुछ ऐसे, because sometimes these patients become family as well. आपके इसमें yes, why not? मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट थी जिसका नाम है एलन. Okay. Ellen, that's for you.
यस, तो वो भी सुन रही होगी मोस्टली। वो तो अभी यार वो सोशल मीडिया में छाई हुई है, शी इज डूइंग सम मॉडलिंग नाउ। लेकिन वो जब पहली बार मेरे साथ आई थी, मेरे पास आई थी, उसके काफ़ी सारे इश्यूज थे एंड देन वी सॉल्व इट। एंड उसके बाद उसका नेचर और मेरा नेचर इतना ज़्यादा हो गया, एक दूसरे से मैच, वाइब अच्छी मिली कि वो मेरे क्लिनिक में सारे लोगों के लिए बिरयानी वगैरह लाती थी। ओह वाओ। और फिर हम लोग घर में मिलने लगे, एक दूसरे के घर जाने लगे। इट वॉज लाइक इवन नाउ वी आर गुड फैमिली फ्रेंड्स। वाओ, बहुत अच्छी है वो भी। ओके, एनी अदर स्टोरी यू हैव कि ऐसा हुआ है पेशेंट दोस्त बन गए? पेशेंट, टू टेल यू फ्रैंकली, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो मुझे 2015 से फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दे आर ऑलमोस्ट लाइक माई Family फैमिली only. एंड दे टेल मी, डॉक्टर अभी आप कहाँ हो, कौन से क्लिनिक में हो, कौन से मिलने आ रहे क्लिनिक में हो। और कुछ ऐसा इमोशनल सीन कुछ हुआ है कभी, मतलब लाइक कोई पेशेंट बहुत ही इमोशनल थे लेकिन आपके पास आके दे फाउंड दैट कंफर्ट जोन, ऐसे कुछ बहुत ही ऐसे? हाँ, एक तो था बेचारा वो, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स बाय द वे। कोई नहीं। या सो ही वेंट टू अ वेरी वेल नोन क्लिनिक और तो वहाँ पे उसने अपना रूट कनाल करवाया, विच इज स्टार्टेड विद दैट बिकॉज ही वॉज इन अ ट्रमेंडस पेन, ही कुड नॉट स्लीप इन द नाइट. So early morning he went over there because when you are in total pain, you really can't think logically, right? तो वो बेचारा वैसे गया होगा और इतना ज़्यादा उसे पेन हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब द थिंग्स बट ही वाज लाइक लिटरली आई वाज क्राइंग and I said I'll come later on, doctor. And he kind of escaped from there. Then somehow he read my reviews and he came to me. He said, doctor, please, this is what it is and I read a lot about you. So I hope I'm having a lot of hopes from you. So please, I need to do this at any cost, but help me out. तो उसके बाद तो हम लोग करीब 15-20 मिनट तो उसका काफ़ी काउंसलिंग करना पड़ा. एंड जो मेरी असिस्टेंट, सी इवन असिस्टेंट्स आर इक्वली responsible for making patients comfortable in the chair. I'm so glad you're acknowledging that. Yeah. Without assistants, we dentists cannot survive. So thank you all my fantabulous assistants. Please, if you are listening to me. Shout out. Yes. So हम दोनों ने उसे काफ़ी comfortable बनाया चेयर में और when he left, you won't believe that he was not at all anxious. Next time वो आया ऐसे आराम से बैठा, गप्पे शप्पे मारे, फिर कहा क्या है, क्या दिखाया उसने, क्या कौन सी मूवी देखी, ये सब चैटिंग वगैरह हो गई. How nice. And he was like, हाँ, now I don't have a phobia at all. Transformation ना पूरा का पूरा. Total, मतलब सुकून होता है वो अलग ही. Like you, they know कि अभी हम आ गए हैं एक safe place, safe hands में आ गए हैं करके. अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, next question is. ये एक डेंटल क्वेश्चन ही है एंड सी इफ यू कैन आंसर दिस टू अस. डू शुगर फ्री गम्स एंड ड्रिंक्स रियली प्रिवेंट कैविटीज एज एडवर्टाइज्ड? Sugar free to a certain extent. I don't agree to it completely. The thing is, whatever you kind of chew for longer period of time, इसके साथ आपका प्लाग भी होता है. ऐसा नहीं है कि आप ब्रश करके च्यू कर रहे हो, है ना. तो अगर वो काफ़ी टाइम आपके टीथ के सर्फेसेस के अराउंड रहेगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो रहेगा कैविटी परसेंट, एसिड फॉर्मेशन तो रहेगा, कंप्लीटली फ्री नहीं होगा. ओके, ऑलराइट. ओके, नाउ वी हैव सम मिथ्स अबाउट डेंटिस्ट. आप एक्सप्लेन कर सकते हो? सो दिस इज अ हैदराबादी स्टाइल. ओके, वी डू इट विद ऑल आवर गेस्ट. तो इसमें ऐसा होता है कि सहिच, ओके, एंड बैगन. बैगन मीन्स नो. लाइक बैगन इज अ वर्ड ओकेजनली यूज कि कोई भी सिचुएशन में यूज कर लेते हैं हम लोग. तो हमारे इसमें हमने नई का मतलब बैगन. इट्स नॉट बैगन, ओके, बैगन. हाँ, तो सच्ची मतलब yes, true. And बैगन मतलब no करके. And if you wish to give explanation to that, short वाला आप दे सकते हो. Okay, let's start. Are you ready, Dr. Chandan? Looks like. Just go into the Aisha mode. Okay, very first one. You don't need to visit a dentist unless you have a toothache. बोल के दिखाना वहाँ. अच्छा, बैगन. Okay. So, see, आपको कई बार ऐसे होता है कि कैविटीज आर देयर बट दे विल नॉट गिव यू पेन. Okay.
So it is better to prevent them as and where it is. Okay. तो आप जब routinely visit करोगे, you can do this preventive procedure, which is comparatively painless, and it will save your budget also. हाँ ना? Dentists are very expensive. That's what I've heard. Question number 2. Question number 2, is it? Baigan. Baigan, they're not expensive. No. It depends. आप उनको expensive बना सकते हो. Okay. If you don't want to say. visit. So beginning में जाएंगे तो सस्ते में निपट जाएंगे. That's what you're saying? पक्का. Okay. Next question. Sugar is the only cause of cavities. Baigan again. Baigan. Yeah. Okay. So what else causes cavity So then? all kind of refined foods, आप जैसे बिस्किट भी खाते हो, केक खाते हो, नॉर्मल भी अब अगर आप खाना खाते हो जिसमें ज़्यादा प्लाक जमा हो जाता है, all of it will cause Even cavities. fruits, you said? Yeah. If the fruit pulp stays in our teeth for long time, Okay. of course. Okay. Anything which will stay around the teeth for long time, it will attract plaque. Plaque से बनेगा tartar and the acid formation. Okay. Now this question is something everyone is doing lately. Whitening your teeth destroys your teeth entirely. Baigan. Baigan? Okay. So? No. It is the least invasive procedure. That is what we call in dentistry. Okay. So whitening teeth is something which will remove the intrinsic stain. जो आपके मतलब दांत के अंदर हम लोग जो काफ़ी स्पाइसी खाना खाते हैं जिसमें हल्दी होती है, मिर्ची होती है, all those things go in the outer surface of the tooth and that causes the discoloration of the teeth. तो अगर आप whitening करवाते हो तो ये वाली जो superficial चीज़ है वो निकल जाती है. Okay. So it kind of cleans your teeth as well, right? Okay. हाँ. So इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है सर. But there are some जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाइटनिंग कराते हैं, मतलब वो चमक जाएंगे प्रॉपर से वो. So वो तो वो जो आप कह रहे हो ना जो एकदम मतलब दांत मतलब यू इफ यू ओपन द दिस थिंग योर टीथ स्पार्क आएगा उसमें. तो उसमें जिसमें देवा की जरूरत नहीं रहती है. देवा की जरूरत ट्यूबलाइट हो जाती है एकदम से. हाँ, वो तो यूजुअली दे आर वीनियर्स. What is veneers? सो वीनियर्स एक ऐसा इट्स लाइक अ लैमिनेट. जैसे हम लोग लैमिनेट लगाते हैं वुड को, वैसे एकदम थिन वाला एक लेयर रहता है जो सिरामिक का रहेगा या फिर जिरकोनिया का रहेगा, विच इज बॉन्डेड ऑन टू द टूथ सर्फेस. Oh. सो दैट गिव्स लाइक परमानेंट कलर चेंज. Permanent it is. हाँ जी. Okay. And we can do temporary as well. टेम्पररी या टेम्पररी द वे आई टोल्ड यू जो आप क्लिनिक में आके करवा लेते हो, दैट इज यूजुअली 1 hour प्रोसीजर. And how long does it stay? Depends on tea and coffee intake of yours. Oh, really? Yeah. But around 6 months तो definitely रहेगा. 6 months definitely. हाँ, आप उसको maintain अच्छी करोगे तो ज़्यादा टिकेगा. Okay. Next question. Flossing isn't necessary if you brush well. अगेन बैगन. यार आप मुझे ये वाला दूसरा वाला कब करा रहे हो? तो फ्लॉसिंग इज़ नेसेसरी क्योंकि फ्लॉसिंग करते हैं हम लोग जब 2 दांतों के बीच में जाएगा वो फ्लॉस और वो क्लीन करेगा, तो ब्रश वहाँ पे नहीं जाएगा, है ना. सो यू नीड दैट. एंड जिनके गम्स थोड़े नीचे उतर जाते हैं तो दे हैव अ वाइडर गैप्स इन बिटवीन द टीथ. Right. सो फॉर देम देयर इज अ स्पेशलाइज्ड टूथ ब्रश. Okay. हाँ, तो उसे कहते हैं इंटरडेंटल ब्रश. Okay. So instead of floss, in those cases, you can use these interdental brushes. Okay. Next wala question. Bleeding gums during brushing are normal. Again, यार बैगन. All the baigans. हम उसका रायता बना सकते हैं, सालन बना सकते हैं इसके बाद में. भरता भी बना लेंगे. भरता बना सकते हैं, है ना. हाँ. बाबा गणूश. अच्छा ठीक है, खाने पे बाद में जाएंगे. ऑफ ओकेजनली अगर आपको होता है इसका मतलब यू आर ब्रशिंग अ बिट टू मच. Okay. यू नो समवेयर यू आर ट्रॉमेटाइजिंग योर गम्स. लेकिन अगर आपको रेगुलरली हो रहा है, और कुछ लोग तो मुझे ऐसे ही कहते हैं कि भाई मैं जब सो के उठा और मैंने गार्गलिंग की तो मैंने सिंक में देखा कि ब्लड है, तो दैट इज कम्प्लीटली एबनॉर्मल. ये नहीं होना चाहिए. हाँ, तो इसके लिए इट्स बेटर यू क्लीन योर टीथ एवरी 8 months to 1 year. Okay. इट इज़ बेटर. और जिनके गम्स में ऑलरेडी इशू है, जेनेटिक इशू है या फिर इनहेरेंट इशू है, दोज पीपल शुड डू इट मोर फ्रीक्वेंटली. Okay. हाँ. All right. So next question here. जिनको सब दांतों के प्रॉब्लम है, all their issues regarding their teeth, if they approach you, you're gonna fix it like Dr. Magic.
इसके लिए तो बैगन मत दिखाओ अभी आप. नहीं, इट कैन नॉट बी लाइक Okay, at least इन जितना जिफी हो तो नहीं. In a jiffy नहीं, it will take time, but yes, you will solve it. या फॉर दैट बोलो अभी इसके लिए. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सच क्वेश्चन. एटलीस्ट मैं उठा सकती हूँ यार. सच्ची. तो आप वो कर सकते हो. हाँ जी. चेंजेस करा सकते हो. हाँ जी. एंड ऑब्वियसली इतनी प्यारी डॉक्टर है तो जाएंगे ही सारे कूद के. थैंक यू सो मच. So what advice would you basically give to the aspiring dentist or your patients, कि दांतों के अपना जो ख्याल है वो कैसे करें? That can be for your patients and for the aspiring dentist, because that is something like many people are still dicey about whether to choose it or not. So what would be your message? फॉर द पेशेंट्स डेफिनेटली कि आप, एक तो ये चीज़ होती है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं कि जिसमें आप काफ़ी सारे मसाले इकट्ठा करके आप लगा लो दांत में तो वो ठीक हो जाएगा. पता नहीं बहुत सारे नुस्खे आते हैं वैसे. तो वैसी चीज़ नहीं है कि जो डीके है या कैरीज है उसे निकालना ज़रूरी है. आप वो दांत में रख के उसके ऊपर कुछ लगाओ तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. सो काइंडली डोंट बिलीव इन ऑल सच थिंग्स. दूसरी चीज़ वो दांत वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग के लिए कहते हैं कि वो आप बेकिंग सोडा यूज़ करो, फिर उसमें आप नींबू डालो, फिर उसमें आप नमक डालो, काफ़ी सारी चीज़ें होता है. I've seen that Insta reel. Thankfully they don't पेस्ट tell में it डाल to- के उसमें हाँ. किच करके रखो करके. तो वो तो बहुत हार्मफुल है. ओके. हाँ, तो मतलब इट टेक्स आउट द आउटर सरफेस ऑफ द एनामल, एचिंग कर देता है वो. तो इनिशियली तो आपको लगेगा कि वाओ इट्स रियली वर्किंग, और वो फिर रिबाउंड होता है क्योंकि वो फ्रेश सरफेस है, ओपन है, स्मूथ नहीं है. सो इट विल अट्रैक्ट मोर स्पाइसेस और आप ज़्यादा द टीथ विल लुक मोर येलो. तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. So please don't follow all such nuskhas on YouTube. Yeah. And second thing कि आप every 6 to 8 months dentist के पास visit करो. And third thing, please take dental insurance. हाँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम होता है. I don't have it too. Yeah, you must. लेना चाहिए. क्योंकि फिर क्या होता है, हम लोग ये सोच के कि बाबा डेंटिस्ट्री या फिर दांत का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए नहीं जाएंगे. क्योंकि एक साथ जाएंगे तो ओ माय गॉड आई जस्ट लूज $500 जस्ट लाइक दैट, है ना. तो इससे अच्छा है कि आप एक छोटा सा प्रीमियम भर दो, थोड़े सा ज़्यादा जो नॉर्मल से होता है, एंड देन फॉर अ ईयर यू विल बी केयर फ्री ना. ट्रू. हाँ, वो उतना ध्यान रखना चाहिए. प्लीज डू दैट, टेक इंश्योरेंस एंड यू विल बी केयर फ्री. That's a good one. I will also take this advice. Okay. For the aspiring dentist then? For the aspiring dentist, yes, if you're really, really passionate about giving service to somebody. इसके लिए क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं ना, they are usually having a very kind heart. उसका एक basic nature होता है. Healers, yeah. Doctors and dentists and allied professionals, we are all healers. So unless you have that kind of thing in your mind, in your heart, don't go into it. क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है तो there are hundreds of other professions. ये बहुत बड़ी मिथ है कि आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके पास मतलब यू डोंट नो मे बी बुगाटी रहेगी आपके पास घर के बाहर, मर्सिडीज रहेगी. ऐसे नहीं होता है. ओके. एंड बी रेडी टू डू ऑड आवर्स दिस थिंग ऑन द ग्राउंड, कि आपको करना ही है, उतना काम होगा ही. नथिंग कम्स विथ जस्ट सिटिंग अराउंड. ट्रू. तो अगर आप यू आर रेडी फॉर बोथ, सुकून मिलता है ना बेसिकली. या एंजॉय इट. सुकून मिलता है ना, आप किसी को कुछ अच्छा करके दे रहे हो जो बाकी कोई नहीं कर सकता. सही है ना. सो यू हैव द मैजिक हैंड्स. या एंड बाकी इसमें दिस इज समथिंग आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ. बाकी इसमें एटलीस्ट वी कैन हील ऑन आवर ओन. दांतों का हीलिंग नहीं होता ना खुद से. नहीं होगा, कभी नहीं होता ना. नहीं. हाँ, As of now तो नहीं है ऐसा कुछ हुआ. हाँ. बट या मे बी इन द फ्यूचर समथिंग प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते हैं कोई चीज को. ओके. अगर आप इफ यू इंटरवीन इन टाइम तो वो चीज हो सकती है. ओके. कूल. वेल डॉक्टर चंदन, इट वाज सो गुड हैविंग यू. एंड ऑब्वियसली यू लुक लाइक अ संतूर मॉम. डेंटिस्ट्री आई डोंट नो कैसे चूज किया आपने, बट आई एम प्रिटी श्योर यू आर मेकिंग अ गुड डिफरेंस आउट देयर, बिकॉज रीडिंग आउट योर टेस्टिमोनियल्स, द वे यू ट्रीट योर पेशेंट, फैमिली बना के रख दिया आपने. एंड आई कैन सी दैट लव फॉर योर प्रोफेशन. एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट के बाद में बहुत सारे और लोग
सोचेंगे कि मेरे को डेंटिस्ट बनना है करके, इंशाल्लाह. Thank you so much. And so thank much. you so much for taking out your valuable time for being here and advising us. मैं भी इसमें काफ़ी सारा मेरे को सीखने को मिला है आज. And I'm really looking forward for this podcast. ये कैसे आएगा करके. Pakka. And I'm also really thankful to you, Aisha, for giving this platform to me to express myself. Love you. Love you too. All right, guys. Thank you so much for watching our podcast, Chai Shai with Aisha, powered by Procast Studio Dubai, AMG Digitech Solutions, your one-stop solution for all your printing, designing, and digital marketing needs, and Takeoff Tours, our travel partner. So in case you wish to get featured, please reach out to us on Instagram @teacher_Aisha Sheikh or @Chai Shai with Aisha. Thank you.